Very good morning, everyone. This is Vipin Kumar Gupta. I am the faculty of English of US Academy Institute, Gorakhpur. My dear student, today we are here to start the second poem of class 12th, that is an elementary school classroom in a slum. This is the second poem prescribed in your syllabus, that is written by Stephen Spender, who was an English poet and essayist. First of all, let us come to know about the poet Stephen Spender. Stephen Spender, who was born in London, England, who was an English poet and essayist. He left University College, Oxford, without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender actually took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Stephen include poems of dedication, the age of being, the creative element, the struggle of the modern, and an autobiography. This present poem, An Elementary School Classroom in a Slum, is actually about the condition of the elementary school that is situated in a slum area. The poet wants to attract the attention of the authority and the common people about the very miserable condition of the elementary classroom that is in a slum area. In this poem, we will come to know about the poor and miserable condition of the children of an elementary school. That is, writer wants to draw the attention about the inequality that is prevailed in our society. From the very first line of the poem, you can see about the condition of the children, how they are looking, how they are different from English medium schools or common schools, how the students are looking, how they are behaving in the schools of an elementary that is situated in a slum area. So in the very first paragraph, because you can see here first, second and third and fourth, four paragraphs are there in the poem, and in the very first poem you can see in the very first paragraph you will come to know about the condition of the children. Far far from gusty waves these children's faces. From the very first line you can see the condition of the children. Far far from gusty waves these children's faces, means you can see the condition of the children, you can see the faces of the children who are in the classroom of an elementary school that is situated in a slum area. In a slum area there is one elementary school that is situated there, and in the first paragraph we will come to know about the condition of the children. So far far from gusty waves these children faces, like rootless weeds. Weeds, my dear student, you know very well, weed mean unwanted plant. सो देयर फेसेज आर लुकिंग, उनके जो फेसेज हैं, जो चिल्ड्रंस के जो फेसेज हैं, उनके जो चेहरे जो हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है रूटलेस वीड्स, जंगली पौधों की तरह से, बिल्कुल अनवांटेड प्लांट्स की तरह से, बिल्कुल उनके चेहरे जो है बिल्कुल बिखरे हुए लग रहे हैं. द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, और जो उनके बाल जो है पूरे क्या हैं वो इधर उधर बिखरे हुए हैं, पूरा उनका चेहरा जो बिल्कुल रूटलेस वीड्स की तरह से बिल्कुल लग रहे हैं उनके चेहरे. द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, and one tall girl is there in the classroom that had put her head down. The tall girl, जो एक tall girl उस classroom में है, उसने अपने head को down करके रखा हुआ. She was not feeling well. The paper seeming boy with rat's eyes. Here one symbolical word. The paper seeming boy, the boy who was looking like a paper. Paper mean very thin, बहुत दुबला पतला वो लड़का है. That was looking like a paper with rat's eyes. Rat's eyes again it's a symbolical meaning. Rat eyes mean very small eyes, जैसे चूहे के जो eyes होते हैं बहुत छोटे छोटे अंदर की तरफ धसे होते हैं. Like that only the paper seeming boy, one boy was in the class that was looking very thin, बिल्कुल पेपर की तरह से, and was having rat's eyes. The stunted unlucky hair of twisted bones, reciting a father gnarled disease. और एक जो लड़के जो उस क्लास में, स्टूडेंट्स जो उस क्लास में हैं, वो बिल्कुल वही डिजीज़
को फेस कर रहे हैं जो कि उनके फादर्स ने फेस किया था। मीन्स ये जो उन्हें डिजीज़ मिले हुए बच्चे, बिल्कुल ये विरासत में, हेरिटेज में मिला हुआ है इनको अपने पेरेंट्स से, दे वर लुकिंग लाइक द सेम ओनली। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क at back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eye lived in a dream of squirrel's game in tree room other than this. And one student who was sitting in the corner of the class that was looking very dim. तो उस क्लास में जो रोशनी है बहुत डीम है, बहुत ही हल्का धुंधलापन रोशनी है उसमें. And one boy who was looking very sweet and young was sitting in the class एट द बैक साइड. क्लास के में बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है एक लड़का जो छोटा सा बहुत स्वीट और यंग दिख रहा है. हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस. एक छोटा बच्चा जो क्लास में बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है जो बहुत स्वीट और यंग दिख रहा है, उसकी जो आंखें हैं इट वॉज लुकिंग आउटसाइड, बाहर वो तरफ वो देख रहा है और बाहर एक पेड़ के पास जो गिलहरी खेल रही है उसको देखने में व्यस्त है. अननोटेड, वन नोटेड, इट इज रिटन वन अननोटेड. One boy was there in the classroom. Unnoted means उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा. Teacher was teaching there, but nobody was taking care of that boy. Why he was looking outside of the class. वो लड़का खिड़की से बाहर वह एक पेड़ के पास गिलहरी का खेल देखने में व्यस्त है, but nobody was noticing him, nobody was taking care of him. तो you can see my dear student in the first paragraph the condition of the children. पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने स्टूडेंट्स को कंडीशन को देखा. चिल्ड्रन जो उस क्लासरूम में एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके कंडीशन को हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं. उनके फेसेस जो हैं बिल्कुल एक रूटलेस वीड्स की तरह से, अनवांटेड प्लांट्स की तरह से हैं. उनके बाल जो बिखरे पड़े हैं बिल्कुल वो अलग तरह से लग रहे हैं. जो टॉल गर्ल है वो अपना हेड डाउन की हुई है. पेपर स्विमिंग बॉय जो एक लड़का जो है जो माल न्यूट्रिशन का केस है, जो बहुत दुबला पतला है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है. पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड साइज. और ये जितने भी उनके जो ट्विस्टेड बोन्स, जितने भी उनको बीमारियाँ जो काइफोस्कोलियोसिस की जो प्रॉब्लम, जो उनकी बोन्स जो ट्विस्टेड हैं, ये सब उन्हें हेरिटेज में अपने पेरेंट्स से मिला हुआ है. और एक बच्चा जो है उस क्लास में ब्लैक लड़का जो है बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई टीचर ध्यान नहीं दे रहा है. वो बाहर एक पेड़ के पास गिलहरी का गेम देखने में व्यस्त है. सो इट मीन्स माई डियर स्टूडेंट, यू कैन सी इन दिस पैराग्राफ यू हैव रेड अबाउट द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रेन हु आर रीडिंग in the elementary school that was situated in a slum area. Now let us see the second paragraph on sour cream walls donations. In first paragraph, my dear students, you have come to know about the condition of the children. Now in second paragraph you will come to know about the condition of the classroom. पहले पैराग्राफ में दोस्तों आप लोगों ने देखा बच्चों का कंडीशन, जो चिल्ड्रन की कंडीशन है एलिमेंट्री स्कूल का, उसको देखा. अब दूसरे पैराग्राफ में आप देखेंगे ये क्लासरूम का कंडीशन, हाउ इट वाज लुकिंग. नाउ सी द फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस. और जो क्लासरूम की जो दीवारें हैं दैट हैज बिकम वेरी सोर, वेरी बहुत फेड हो चुका है, बहुत दिन से उसमें पेंट कलर नहीं लगा हुआ है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा वो डिसकलर हो चुका है, फेड हो चुका है दीवारें जो उसकी हैं. डोनेशंस and the donators name were also written on the wall of that classroom. क्लासरूम की जो दीवारें हैं बहुत फेड हो चुकी हैं, बहुत दिन से उस पर पेंट कलर नहीं हुआ है, और उन दीवारों पे डोनेटर्स के नाम, जो उन्होंने डोनेट किया है, कुछ पैसा दान दिया, चैरिटी दिया है, उनके नेम्स लिखे हुए हैं. शेक्सपियर्स हेड, और क्या है उस दीवारों पे देखते हैं, कमरे की दीवारों पे और क्या है. शेक्सपियर्स हेड, वन इमेज, शेक्सपियर की एक फ़ोटो जो है वहाँ पर दीवार पे लगी हुई है. क्लाउडलेस एट डॉन, another picture was there that was cloudless at dawn. भोर का एक सीन है जो उस पर एक पिक्चर लगा हुआ है दीवार पे. civilized dome riding all cities, build flowery Tyrolis valley. Tyrolis valley, my dear student, Tyrolis valley it's a kind of valley that is situated in Austria. ऑस्ट्रिया में एक टायरोलिस वैली जो है वो एक फूलों के, ऐसा कहा जाता है कि फ्लावरी है, फूलों से भरा हुआ वो वैली है, घाटी है, जो कि बहुत सुंदर है. उसकी एक फ़ोटो उस क्लासरूम में लगी हुई है टायरोलिस वैली की, जो कि ऑस्ट्रिया में है. ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, उसके अलावा एक वर्ल्ड का मैप वहाँ क्लासरूम के दीवार पे लगा हुआ है. एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग. और कह रहे हैं क्लासरूम में क्या क्या लगा हुआ, फिर से देखते हैं. डोनेटर्स नेम, जो कि सबसे पहले तो दीवार बहुत ज़्यादा फेड हो चुका है, डोनेटर्स नेम लिखे हुए हैं. शेक्सपियर्स
का एक पिक्चर लगा हुआ है, क्लाउडलेस डॉन का एक पिक्चर लगा हुआ है, सिविलाइज डोम के पिक्चर लगे हैं, और टायरोलिस वैली जो कि ऑस्ट्रिया में है, फूलों की घाटी कही जाती है, उसकी पिक्चर लगी हुई है, और इसके अलावा वर्ल्ड मैप उस क्लासरूम में लगा हुआ है। इतनी चीज़ें दीवारों पर लगी हुई हैं। बट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, बट एक्चुअली वट एवर द सीन हैज़ बीन सोन ऑल अराउंड द वॉल ऑफ द क्लासरूम, दीज आर नॉट एक्चुअली द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रेन। ये जो सुंदर सुंदर घाटियाँ जो लगी हुई है, फूलों की घाटियाँ, सुंदर शेक्सपियर के वर्ल्ड मैप ये जो लगे हुए हैं, एक्चुअली ये जो हैं ये इन सब चीज़ों से इन बच्चों का कोई भी रिलेशन नहीं है, बिकॉज दीज चिल्ड्रन आर वेरी पुअर। ये चिल्ड्रन जो हैं जो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये बहुत गरीब हैं, ये इस दुनिया को कभी नहीं देख सकते हैं। ये वर्ल्ड मैप जो है, ये सुंदर टायरोलिस वैली है, न इसको कभी वो देख सकते हैं, न कभी वहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि इनकी पूरी लाइफ जो है क्या है, वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग। उनका जो वर्ल्ड है वो इसी स्लम एरिया में कन्फाइंड है, इस स्लम एरिया के अंदर ही वो कन्फाइंड है, यहीं वो जन्म लेते हैं और यहीं पे वो एक दिन मर जाते हैं, यहीं तक उनका जीवन सीमित है। 2 more लाइन्स आर देयर इन द सेम पैराग्राफ, 2 लाइन और बचा हुआ सेकंड पैराग्राफ में। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड। वास्तव में इनका जो पूरा जीवन है ये एक नैरो स्ट्रीट, एक पतली गली में, जो स्लम एरिया का जो पतली गली है, इसी में ही उनकी पूरी दुनिया कन्फाइंड है। इन सब चीज़ों से वो दूर नहीं जा सकते। फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड। इतनी सुंदर जो नदियाँ, घाटियाँ, केव्स, चोटियाँ और इतने सुंदर जो दुनिया है, इन तक ये बच्चे, ये स्लम चिल्ड्रन, ये कभी नहीं पहुंच सकते हैं। इनकी पूरी जो दुनिया है इस स्लम एरिया में ही कन्फाइंड है और यहीं तक उनका पूरा जीवन सीमित है, बिकॉज दे आर वेरी पुअर, दे कैन नॉट सर्वाइव दीज काइंड ऑफ ब्यूटिफुल वर्ल्ड। So in second paragraph, my dear student, we have come to know about the condition of the classroom. Now let us see the third paragraph. अब सेकंड पैराग्राफ में हम लोगों ने जो पढ़ा, क्लासरूम का कंडीशन कैसा है, क्या क्या दीवार पे फोटो लगा हुआ है, शेक्सपियर के फोटो, क्लाउडलेस एट डॉन के फोटो, टायरोलिस वैली के फोटो, वर्ल्ड मैप, ये सब लगा हुआ है, उसके बारे में थर्ड पैराग्राफ में पोएट स्टीफन स्पेंडर उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उन सब चीज़ों की क्या वैल्यू है बच्चों के लिए। लेट अस सी थर्ड पैराग्राफ। श्योरली शेक्सपियर इज विग्ड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। अब पोएट स्टीफन स्पेंडर कहते हैं शेक्सपियर इज विग्ड, विग्ड इन द सेंस यहाँ क्या है, पहले हम देखते हैं शेक्सपियर इज विग्ड क्या सेंस है। शेक्सपियर इज विग्ड मीन्स शेक्सपियर इज यूजलेस इन दैट क्लासरूम, शेक्सपियर इज मीनिंगलेस इन दैट क्लासरूम, बिकॉज दो चिल्ड्रन कैन नेवर नो अबाउट हु वॉज शेक्सपियर, हाउ ग्रेट ही वॉज। शेक्सपियर उन बच्चों के लिए यूजलेस है, मीनिंगलेस है, क्योंकि वो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं वो शेक्सपियर के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन इंग्लिश लिटरेचर के लिए था, वो कितने महान थे, कौन थे, वो बच्चे कभी नहीं जान पाएंगे। दैट्स वाई द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर इन दैट क्लासरूम वॉज मीनिंगलेस अकॉर्डिंग टू द पोएट स्टीफन स्पेंडर। पोएट स्टीफन स्पेंडर कहते हैं शेक्सपियर का जो इमेज लगा हुआ है उस क्लासरूम में वो यूजलेस है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो वर्ल्ड मैप लगा हुआ है उस क्लासरूम में, दैट इज अ बैड एग्जाम्पल। अगेन इट्स अ यूजलेस एग्जाम्पल, बेकार है, बिल्कुल यूजलेस है इन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दुनिया को कभी देख नहीं पाएंगे और न ही कभी शेक्सपियर के बारे में जान पाएंगे। दैट्स वाई दीज ऑल थिंग्स आर यूजलेस फॉर दो चिल्ड्रेन विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। और क्योंकि जब ये शिप, ये सन, ये लव, ये सब सुंदर चीज़ें देखेंगे तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें टेम्प्ट मीन टू अट्रैक्ट, टू अल्योर, उन्हें अट्रैक्ट करेंगे इन सब चीज़ों को चुराने के लिए, इन सब चीज़ों को पाने के लिए। बट एक्चुअली दे कैन नॉट सर्वाइव फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। लेकिन इन सब चीज़ों को, इन सुंदर दुनिया को वे कभी नहीं पा सकते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट कम फ्रॉम देयर क्रैम्प्ड होल दैट वॉज फॉग टू एंडलेस नाइट। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग से लेट नाइट इनकी जो पूरी दुनिया है ये इसी स्लम एरिया में कन्फाइंड है। इन सुंदर दुनिया, जो अच्छी चीज़ें जो हैं, ब्यूटीफुल वर्ल्ड, वर्ल्ड मैप, टायरोलिस वैली, इन चीज़ों की पाने की कोशिश वो कर सकते हैं, बट दे कैन नेवर गेट इट, वो कभी उसे नहीं पा सकते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रेन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेकल्ड ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास। और ऑन देयर स्लैग हीप, जो ये कचड़े के कूड़े के ढेर में जो बच्चे रहते हैं, दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्ड पीप्ड थ्रू बाई बोन्स,
और ये बच्चे इतने दुबले पतले, इतने माल न्यूट्रिटेड है वो कि उनकी जो हड्डियां हैं वो उनकी स्किन से बाहर पीप कर रही, झाँक रही, देख रही, मतलब बहुत दुबले पतले, लाइक अ पेपर वी हैव रेड ऑलरेडी। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोर। और कुछ बच्चे जिनकी आइज़ बहुत कमज़ोर हो चुकी है, जो स्टील के जो स्पेक्टेकल पहन रहे हैं, चश्मा पहन रहे हैं, दैट वाज विद मेंडेड ग्लास, उनके शीशे जो है कई जगह से टूटे हुए हैं। और लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन, ऐसा लग रहा है स्टोन पे ये बॉटल के बीट्स, शीशे के बीट्स लगाए गए हैं। मीन्स दी चिल्ड्रन आर द केसेज ऑफ द मॉल न्यूट्रिशन, बहुत दुबले पतले पेपर सीमिंग की तरह से, और उनकी हड्डियाँ बिल्कुल उनकी स्किन से बाहर निकल रही हैं, और वो जो चश्मे पहने हुए हैं, स्पेक्टिकल पहने हैं, वो बिल्कुल टूटे हुए ग्लासेस से किसी तरह से जोड़कर बनाया गया। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी सम, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम। तो पोएट ओवरऑल इस पैराग्राफ में यही कहना चाह रहा है कि जो भी उस क्लासरूम में जो पिक्चर्स, जो फोटोग्राफ जो लगाए गए हैं, दे आर यूजलेस। एंड एक्चुअली पोएट मीन टू से, एक्चुअली इफ यू वांट टू शो द वर्ल्ड मैप, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम। तो पोएट कह रहे हैं यहाँ पर, अगर वास्तव में वर्ल्ड मैप लगाना ही है तो उस वर्ल्ड मैप में उस स्लम एरिया को भी दिखाया जाए। कितना बड़ा स्लम एरिया जो है यहाँ पर, जहाँ पर ये बच्चे रहते हैं, उस वर्ल्ड मैप, उस स्लम एरिया को भी दिखाया जाना चाहिए, एक्चुअल वर्ल्ड उन्हें दिखाया जाना चाहिए। सो इन द लास्ट पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, पोएट is appealing to the concerned authority, to the governor, to the government to take care of these students so that these students can also get quality education. Now let us see the fourth and the last paragraph. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. और लास्ट पैराग्राफ में पोएट स्टीफन स्पेंडर कहते हैं, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर, द गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, whoever are concerned authorities are there, they must take care of these children, these elementary schools, so that these students can also get क्वालिटी एजुकेशन, उन्हें भी क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो गवर्नर को, इंस्पेक्टर, विजिटर जो भी हैं, उनको इन स्कूल्स का, इन बच्चों का प्रॉपर केयर करना चाहिए। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम, कैटाकॉम इन कब्रिस्तान। और ये जो मैप है, वर्ल्ड मैप जो लगा हुआ है, ये इनके किसी भी काम का नहीं, यूजलेस है। और ये तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट, इंस्पेक्टर जो हैं इसका प्रॉपर केयर लेंगे, अदरवाइज इनकी लाइफ का जो डोर है वो ऐसे ही हमेशा ही बंद रहेगा और ऐसे ही हमेशा रह जाएंगे। ये ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। और इन स्लम एरिया को पोएट कहते हैं, इन स्लम एरिया जितने भी, सबको ब्रेक कर देना चाहिए, सबको ख़त्म कर देना चाहिए, सारे बच्चे समान हों, इनइक्वालिटी ख़त्म हो जानी चाहिए और इनको ब्रेक कर देना चाहिए। अदरवाइज दे विल ब्रेक द टाउन, अदरवाइज ऐसे ही स्लम एरिया बढ़ते रहा, लेकिन ऐसा होगा पूरी दुनिया में केवल स्लम ही स्लम होगा। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड स्टैंड। और पोएट कहते हैं कि इस तरह के स्लम को ब्रेक कर देना चाहिए, और इन चिल्ड्रन जो हैं, यहाँ के जो स्लम एरिया के जो चिल्ड्रन हैं, इनको भी बराबर का इक्वलिटी मिलना चाहिए, इक्वलिटी के बेस पे इनको प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए। ग्रीन फील्ड में उनको एजुकेशन, इनको हर तरह के प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए इन बच्चों को भी। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड स्नैड एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू द बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और इन बच्चों को भी प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए, जिससे ये भी अपना फ्यूचर को डेवलप कर सकें और अपने लाइफ को सिक्योर कर सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें, सारी चीज़ें इनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। बिकॉज हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, बिकॉज हिस्ट्री उन्हीं को लर्न करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, इंप्रेसिव होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। इसलिए पोएट स्टीफन स्पेंडर कहते हैं कि इन बच्चों को भी प्रॉपर एजुकेशन, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन, और सबसे बड़ी चीज़ इक्वालिटी मिलनी चाहिए। बिकॉज माय डियर स्टूडेंट, एवरीबडी नोज टूडेज द कंडीशन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल के कंडीशन हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इसकी कंडीशन इस समय कैसी है। इसलिए पोएट स्टीफन स्पेंडर ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से, अथॉरिटीज से, कि इन बच्चों का भी प्रॉपर केयर किया जाए ताकि ये भी क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन पा सके। सो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम एरिया, एंड आई होप you have come to know, you have got the substance of the chapter. In the end of the chapter, you can see here
some of the objective based questions are there and word meanings are there. These you have to write in your copy, and question answers are there, you have to write in your copy. Beside this, you have to write a short summary of the poem in your copy, and I will add up in the end of the video some of the question which you have to write in your answers book. And in the next video we will read again the next chapter. Okay, then thank you.